Hello everyone, welcome back. In last video, we have seen the expression for the phase velocity. And we have seen that the phase velocity is nothing but the rate at which the wave is changing its phase. Now in this video, we are going to understand the concept of the group velocity. Right? There are two types of velocities in the rectangular waveguide. One is phase velocity and other is the group velocity. Now, the phase velocity that we have discussed, it is only for a single frequency signal. That means if the wave is having a single frequency, right, then that is called as, for it we will define the phase velocity. But in most of the cases, the wave is having the multiple frequencies. That means it is said that, for example, in the fourth semester, you might have studied about the communication, and in that you might have studied about the modulation. So in the modulation, we have seen that the low frequency signal, right? Low frequency signal is multiplied or mixed with the high frequency signal, and you are going to get the modulated signal like this. Modulated signal like this. That means this is called as the modulation envelope, which is supposed to have the two frequencies, modulating frequencies and the carrier frequencies. So such a type of waveforms where we are having the multiple frequencies, or you can have the other waveforms other than this modulation envelope where it is containing the multiple frequency waveforms, right? So for such a type of waveforms where we are having the multiple frequency components, for it we will define the group velocity. उसके लिए क्या करते हैं हम group velocity define करते हैं. So when the wave is propagating through the rectangular waveguide, the rate at which this modulation envelope propagates through the rectangular waveguide, I will repeat once again, the rate at which such a modulation envelope, or you can say the multiple frequency components or multiple frequency wave is propagating through the rectangular waveguide, that velocity it is called as the group velocity, right? So phase velocity, it is only for a single frequency component, and the group velocity it is for the multiple frequency component waveforms, right? तो ये डिफरेंस दोनों में आप लोगों को ध्यान में रखना है. तो बेसिकली जो ग्रुप वेलोसिटी है उसका डिस्कशन हमने किया हुआ है और यही आपको दिया हुआ है. इफ देयर इज अ मॉड्यूलेशन इन द कैरियर, द मॉड्यूलेशन एनवेलप एक्चुअली ट्रेवल्स एट अ वेलोसिटी स्लोअर देन दैट ऑफ अ कैरियर अलोन एंड ऑफ कोर्स स्लोअर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट. यानी जब हम कोई मॉड्यूलेशन एनवेलप फॉर्म करते हैं, मॉड्यूलेशन फॉर्म करते हैं, तो उसका स्पीड हमेशा स्पीड ऑफ वेलोसिटी से स्पीड ऑफ लाइट से क्या रहता है हमेशा कम रहेगा. ध्यान रखना है, ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है 3 × 10⁸8. फेज वेलोसिटी हमने देखा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 × 10⁸8. और यहाँ पे क्या, जब हम दो या दो से ज्यादा सिग्नल्स को हम जब मिक्स करते हैं तो वो जो एनवेलप फॉर्म होता है उस एनवेलप का स्पीड जो रहता है वो हमेशा 3 × 10⁸8 से कम रहेगा. ध्यान में रखना है. इसका मतलब Vg you will get will always be less than 3 × 10⁸8. ये हम देखेंगे कि क्यों कम आता है. ठीक है, सेंटेंस में तो दिया हुआ है लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी हम देखेंगे कि Vg की वैल्यू 3 × 10⁸8 से कम क्यों आती है. Right? So the velocity of modulation envelope is called as the group velocity and it is represented as V suffix G. G stands for group, V stands for velocity. So V suffix G is the group velocity. V suffix P is the phase velocity. ध्यान रखना है. तो जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है या वेव है या वेवफॉर्म है या एनवेलप जिसको बोला है उसके वेलोसिटी को बोलेंगे आप ग्रुप वेलोसिटी. राइट? This happens when the modulated signal travels in a waveguide. The modulation goes on slipping backward with respect to the carrier. This sentence do not give more stress on this. यही दिया हुआ है कि जब रेक्टेंगुलर वेवगाइड से आपका वेव प्रोपोगेट हो रहा है तो जो मॉड्यूलेशन एनवेलप है या जो वेव है वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड से इनर वॉल से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, स्लीप होता है, और इस तरह से वो रिफ्लेक्ट होते होते वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, अपना ट्रेवल करता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस व्हिच डज नॉट प्ले मच मोर इंपॉर्टेंट इन द डेरिवेशन पार्ट. सिर्फ ये डेफिनेशन ग्रुप वेलोसिटी का आपको ध्यान में रखना है. राइट? देन ग्रुप वेलोसिटी का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अलग से दे दिया है. राइट? यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी, not phase velocity, here it is a group velocity.
right? तो group velocity is defined as the rate at which the wave propagate through the rectangular waveguide. rectangular waveguide में से जो wave आपका जितने rate से propagate होगा, that is called as the group velocity, right? By mistake it is phase velocity आया हुआ है, it should be the group velocity. In the presentation which I have included below this video, ठीक है, उसमें ये आपको correct करके मिल जाएगा, right? Now ये जो हमने Vg, that is group velocity, it is given by d omega divided by beta. Vp का इक्वेशन क्या था हमारे पास? Vp का इक्वेशन आया था हमारे पास ओमेगा डिवाइडेड बाय बीटा. वो क्या था हमारे पास? सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए था, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा 2 पाई ऑफ डिवाइडेड बाय बीटा. फ्रीक्वेंसी वाज सिंगल, सो दैट्स व्हाई ओमेगा डिवाइडेड बाय बीटा आया था. लेकिन यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी के लिए मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है, राइट? तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है, सो देयर कैन बी द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, राइट? फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो आपका फेज चेंज करने का जो रेट है वो भी चेंज हो जाएगा. इसका मतलब डी ओमेगा डिवाइडेड बाय बीटा आएगा, राइट? इसका ही डिफरेंशिएशन लेना है आपको, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी बीटा, दैट इज नथिंग बट योर ग्रुप वेलोसिटी. अभी आपके पास बीटा का इक्वेशन ऑलरेडी हमने फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखते समय बीटा का इक्वेशन हमने डिराइव किया था. वो इक्वेशन क्या था? अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इनटू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, और यू कैन राइट डाउन द सेम इक्वेशन एज लाइक दिस. तो क्या करूंगा, ये जो बीटा का इक्वेशन है, अगर आप बीटा को अगर देखोगे तो इट इज इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा के टर्म्स में. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? डी बीटा डिवाइडेड बाय डी ओमेगा. जो भी इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन वीजी क्या है हमारे पास? डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी बीटा है. तो जो भी एक्सप्रेशंस मिलेगा आपको, उस एक्सप्रेशन को अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, या रेसिप्रोकल अगर उसका ले लेता हूं, तो आपको वीजी का इक्वेशन मिल जाएगा. सो द फैक्ट इज बीटा का इक्वेशन कंसीडर करना है, उसको ओमेगा से आपको डिफरेंशिएट करना है. तो वही मैंने यहाँ पे किया. देखिए बीटा का इक्वेशन दिया हुआ है, राइट? और बीटा को हम ओमेगा से डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो यहाँ पे देखिए ओमेगा वाला टर्म आया हुआ है, राइट? तो क्या हो जाएगा? जैसे कि आपका अंडर रूट ऑफ एक्स रहता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या रहता है? 1/2 रूट एक्स, लाइक दिस, राइट? तो वही किया मैंने, डी बीटा डिवाइडेड बाय डी ओमेगा इज इक्वल टू 1/2. इसको मैं एक्स कंसीडर करता हूं तो 2 रूट एक्स आ गया, राइट? लेकिन ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर में जो नंबर या एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है? और ये टर्म क्या आएगा? इस टर्म को आप सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से. तो बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, राइट, माइनस ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन. ऐसे लिखते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा. तो डी बीटा डिवाइडेड बाय डी ओमेगा, तो इसको आप एज एक्स कंसीडर करो टोटल, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, ये वाला टर्म आ जाएगा पूरा, इनटू मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, राइट? ओमेगा सी एंड अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, बट वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा. तो कांस्टेंट इज अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट, 2 ओमेगा. तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ओमेगा म्यू एप्सिलॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो एक्स को भी हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो इस टर्म को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको 2 ओमेगा म्यू एप्सिलॉन मिलेगा. वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, राइट? तो 2 विल गेट कैंसल्ड, अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन विल गेट कैंसल्ड. तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है? यहाँ पे न्यूमरेटर में ओमेगा मिलेगा, राइट? तो ओमेगा को मैं डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ, या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को ओमेगा से मैं डिवाइड कर देता हूँ. देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ. इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टर्म्स नाउ. तो देखिए इस तरह से हमारे पास टर्म था, तो क्या कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए 2 गेट कैंसल्ड, अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन विल गेट कैंसल्ड. तो अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन न्यूमरेटर में बचेगा. यहाँ पे क्या हमारे पास? ओमेगा है, यानी न्यूमरेटर में क्या बचा है? देखिए अभी ओमेगा बचा है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय, ठीक है? यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास? अंडर रूट ऑफ, राइट? और अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन भी बचा हुआ है यहाँ पे न्यूमरेटर में, राइट? डिनोमिनेटर में क्या बचा है? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, ये बचा हुआ है हमारे पास. तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके आता हूं, यानी यहां से मैं इसको इधर लेके आता हूं, डिवाइडेड बाय ओमेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर में अगर मैं इसको लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. तो न्यूमरेटर में कितना बचा है? अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन जो यहाँ पे लिखा हुआ है,
divided by under root of, now omega square divided by omega square is 1 और ओमेगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा सी डिवाइडेड बाय ओमेगा होल स्क्वायर, राइट। सो देयरफॉर डी बीटा बाय डी ओमेगा कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, जैसे कि वैसे रख दिया है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस omega c is nothing but your 2 pi f c and omega is nothing but your 2 pi f, तो 2 pi will get cancelled, तो यहाँ पे बचेगा omega c divided by omega can be replaced with f c divided by f whole square, right। नाउ लेकिन ये किसका हो गया हमारे पास d बीटा डिवाइडेड बाय d ओमेगा, लेकिन हमारा vg क्या है, दैट इज d ओमेगा डिवाइडेड बाय d बीटा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल लेने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगा, देखिए ये न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में, और ये डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चला गया, राइट। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इज नथिंग बट द c, इट इज वेल नोन एक्सप्रेशन, दैट इज c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, लेकिन किसके लिए, इट इज फॉर फ्री मीडियम, राइट, और इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ठीक है, एफ सी बाय एफ वैसे ही रहेगा। तो एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी हम, दिस Vg, राइट, दिस Vg कैन नाउ बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इज नथिंग बट योर c इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एफ होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Vg इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और ऑलरेडी हमने फेज वेलोसिटी में हमने देखा हुआ था एफ सी डिवाइडेड बाय एफ, इट कैन बी रिटन एज लैम्बडा जीरो डिवाइडेड बाय लैम्बडा सी, राइट। तो इस के जगह एफ सी बाय एफ के जगह मैं लैम्बडा जीरो डिवाइडेड बाय लैम्बडा सी भी रख सकता हूं, तो Vg का इक्वेशन बनेगा मेरे पास c इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्बडा जीरो डिवाइडेड बाय लैम्बडा सी होल स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी, right, you can consider this expression, or in terms of frequency you can see this expression। अभी आपको पता है कि ऑलरेडी मैंने क्या बोला हुआ है कि Vg की वैल्यू हमेशा 3 इंटू 10⁸ से कम आएगी। तो ऑलरेडी वेव प्रोपोगेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि f शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन fc, तो f की वैल्यू अगर fc से अगर ज्यादा रहती है तो ये वाला जो टर्म है हमारे पास, राइट, fc बाय f, ये फ्रैक्शन में आएगा, तो 1 माइनस दैट फ्रैक्शन वैल्यू यानी 0 पॉइंट समथिंग, right, will give you 0 point something, and under root of 0 point something will be 0 point something again, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁸ को इस 0 point something से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो Vg की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ से हमेशा कम आएगी। आप वैल्यूज कंसीडर करके देख सकते हो, राइट। तो ये Vg का इक्वेशन हमने डिराइव किया हुआ है, राइट। अभी हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन Vp एंड Vg, राइट। तो उसके लिए Vp का इक्वेशन और Vg का इक्वेशन हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो Vp का इक्वेशन क्या है हमारे पास, c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस fc डिवाइडेड बाय f होल स्क्वायर, और Vg का इक्वेशन क्या है हमारे पास, दैट इज c इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस fc डिवाइडेड बाय f होल स्क्वायर। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको Vp इंटू Vg दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर मिलेगा। देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। So this is the expression for Vp in terms of wavelength. This is the expression for Vg in terms of wavelength. दोनों में सिर्फ डिफरेंस अगर देखोगे, टर्म्स आपके सेम है, सिर्फ फेज वेलोसिटी में c डिवाइडेड बाय दिस टर्म है और ग्रुप वेलोसिटी में c मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म है। ध्यान रखना है, दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो Vp इंटू Vg इज इक्वल टू c स्क्वायर, और यू कैन राइट डाउन c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Vp इंटू Vg, राइट। सो कभी कभी आपको कंफ्यूजन करने के लिए बोलते हैं कि प्रूव दैट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब आपको इस एक्सप्रेशन तक क्या करना है, आपको डिराइव करना है। अंडर रूट ऑफ Vp इंटू Vg इट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन of Vp and Vg. So that is given to you, that is velocity of light. You can remember Vp into Vg equals to c square. तो एक बार अगर आपने phase velocity या group velocity की वैल्यू अगर आपको मिल जाती है तो you can use this expression to find out the other values, right? So this is all about the phase velocities and group velocities. So that's all for this video. Thank you very much.